کیا گیا ہے. نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے ہو چکی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا ہے اور قیمتوں میں اس وقت کمی کی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اثرات عوام تک پہنچتے ہیں یا نہیں. اس رد و بدل کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. عوام کچھ حد تک تو خوش ہے، لیکن عوام کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اب بھی پہنچ سے دور ہے. حکومت کی جانب سے ہر 15 دن بعد ریٹ میں رد و بدل کیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ رد و بدل تو کیا گیا، لیوی کو بڑھا دیا گیا ہے. جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر قیمت کے حوالے سے دیکھا جائے اور لیوی نہ بڑھائی جاتی تو قیمت میں 2.5 روپے مزید کمی کی جا سکتی تھی. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں زین علی سے. زین، بتائیے گا. جی بالکل، حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی گئی ہے. جو ڈیزل ہے اس کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. پٹرول جو ہے وہ 7 روپے 54 پیسے کم کیا گیا ہے، جس کے بعد پٹرول کی جو قیمت ہے وہ 265 روپے اور 66 پیسے مقرر کی گئی ہے. اور جو ڈیزل ہے اس کی قیمت میں 1 روپے 48 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ 285 روپے مقرر کی گئی ہے. شہریوں سے بات کرتے ہیں، شہریوں کا اس پٹرول کی قیمت میں کمی کے حوالے سے سر کیا کہنا ہے؟ 7 روپے کم کیا گیا ہے، 265 روپے ہو چکا ہے. میرے نظر میں جو انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا یہ بہت اچھا ہے کہ 7 روپے پیٹرول جو ہے نا وہ سستا کیا ہے انہوں نے، لیکن اس کا جو بینیفٹ ہے وہ تب ہوگا جب یہ عوام کو تک جو ہے نا اس کا ریلیف پہنچے گا. تو اگر یہ ریلیف عوام تک نہیں پہنچے گا اور جو ٹرانسپورٹ ہے اور جو ادر چیزیں اس کی جو پرائزز ہیں اگر وہ اسی طرح رہیں گی تو اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پرائزز کو اور تھوڑا جو ہے نا وہ ڈکریز کرے تاکہ عوام کو جو ہے نا وہ سہولت جو ہے نا وہ مل سکے. اچھا سر، پچھلے 15 دن کے لیے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے، جس میں 7 روپے کم کیا گیا ہے. 15 دن بعد دوبارہ ریوائز ہوگا. جبکہ اگر پچھلے 15 دن پہلے کی بات دیکھی تھی تو اس وقت قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا، لیکن اس مرتبہ کمی کی گئی ہے. تو 15 دن تک یہ جو پیٹرول کی قیمت مقرر کی، اس کے بعد پھر رد و بدل کیجیے، اس میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ اگر 7 روپے ابھی سستا ہے تو ان فیوچر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا پرائز کو میرے خیال سے کہ اس کو جو ہے نا وہ ڈکریز ہوگی. اور اگر حکومت جو ہے نا اس چیز کو کرتی ہے، اس کے عمل کرتی ہے تو بڑی ایک خوشائند بات ہے اور عوام کو ریلیف بھی ملنا چاہیے تاکہ جو ہے نا عوام کے لیے بھی جو ہے نا آسانیاں پیدا ہوں. جی بالکل، شہری اس حکومت کی جانب سے جو پیٹرول سستا کیا گیا اس کو خوشائند قرار دے رہے ہیں اور 15 دن کے لیے حکومت نے یہ قیمت ہے وہ مقرر کی گیا. 15 دن بعد دوبارہ اس پیٹرول کی قیمت میں رد و بدل کی جائے گی، دیکھا جائے گا اس میں پیٹرول کی قیمت کم کی جاتی ہے یا زیادہ کی جاتی ہے. بہت شکریہ زین. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل پر شہریوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. کہتے ہیں کہ ریلیف تو ہے مگر پیٹرول اور ڈیزل تاحال جیب پر بھاری ہے. مہنگائی اتنی ہے کہ وہ وقت کی روٹی بھی پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے. ایک اچھی بات ہے کہ سستا کیا ہے انہوں نے، لیکن اس طرح سے جب یہ روڈ ریٹ سارے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اس سے عوام کو ایفیکٹ پڑتا ہے کافی زیادہ. ٹھیک ہے، ہم لوگ ایک دیہاتی دار لوگ ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے ہمیں بہت فرق پڑتا ہے. ایک پیٹرول کے صرف اوپر جانے سے ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن جب پیٹرول نیچے آتا ہے تو ساری چیزیں کم تو نہیں ہوتی. پیٹرول ویسے گھٹ ہونا چاہیے، کم سے کم بھی نہ غریب کی جیب کے مطابق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا پیٹرول پوا سکے اور اپنے گزر بسر کر دے. ضروری نہیں کہ پیٹرول ہی صرف ہے، اور بھی اخراجات ایسے ہیں کہ جڑے نہیں فولڈ ہو رہے. 10 پیسے کا فائدہ ہو تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، اکانومی پہ بڑا اثر ہوتا ہے. تو 7 روپے چلے اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ لانگ ٹائم جو ہے نا چلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 15 دن بعد پھر اس کو مہنگا کر دیا جائے، مزید اس کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک طرف پیٹرول قیمت میں کمی ہوئی ہے، دوسری جانب پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرول پر 2.5 روپے لیٹر لیوی بڑھا دی گئی. پیٹرول پر لیوی 78 روپے 2 پیسے کر دی گئی. سیل ٹیکس بدستور 0 ہے. ذرائع کے مطابق لیوی نہ بڑھائی جاتی تو پیٹرول مزید 2.5 روپے لیٹر سستا ہو سکتا تھا. زاہد عابد سے مزید جانتے ہیں. زاہد، بتائیے اس بارے میں. جی بالکل، اوگرا کے طے شدہ فارمولے کے مطابق ہر ماہ 1 اور 16 تاریخ کو جو قیمتوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے اس میں گزشتہ 4 تاریخیں ایسی گزری ہیں جس میں مسلسل عالمی مارکیٹ کو جواز بنا کر پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کیا گیا تھا. اس مرتبہ پیٹرول سستا کیا گیا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں تاحال مزید اضافہ کیا گیا ہے. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مرتبہ حکومت نے جو ریلیف پیٹرول پر تقریباً 7.5 روپے کا دیا ہے اس میں 2.5 روپے تقریباً مزید ریلیف دیا جا سکتا تھا. لیکن حکومت نے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے، ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس میں 2.5 روپے اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث پیٹرول
सार्फिन जिनको ज़्यादा रिलीफ मिल सकता था उनको वो रिलीफ नहीं मिला। इसी तरह डीजल पर भी इस किस्म की छूट रखी गई और डीजल की कीमत में ₹1.48 इजाफा किया गया है, जबकि इसमें भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह में इजाफा किया गया है। और ये तमाम जो इजाफे किए गए हैं ये IMF से तयशुदा मामला के मुताबिक है और बजट में ये चीज़ मंजूर की गई थी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी रवाम माली साल के आखिर तक ₹100 फी लीटर तक ले जाई जाएगी, जिसमें बतदरीज अमल किया जा रहा है। इस पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के अलावा कार्बन लेवी जो है वो भी मौजूद है और ये ₹2.50 लगाई जा रही है। तो हम गुज़श्ता माह जब कार्बन लेवी लगाई गई थी तो उसमें ये जवाब दिया गया था कि हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कम कर दी है और उसकी जगह ₹2.50 कार्बन लेवी आयद कर दी गई है, लेकिन अब कार्बन लेवी भी ₹2.50 मौजूद है और इसके अलावा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में भी ₹2.50 इजाफा कर दिया गया है, जिसका तमाम तर बोझ लाजमी तौर पर सार्फिन पर पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तकरीबन 1100 से 1200 अरब रुपया साल भर में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से इकट्ठा किया जाना है, जो कि आवाम से ही हासिल किया जाएगा और इसमें बतदरीज इजाफा किया जाएगा। आलमी मार्केट में जो कीमतों में उतार चढ़ाव होगा उसका असर एक महदूद हद तक ही आवाम तक पहुँचाया जाएगा। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर असर न पड़ने का खदशा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मिनी वैन्स, मज़दा, ट्रॉलर सब डीजल पर चलते हैं। डीजल की कीमत में इजाफे के बायस किरायों में कमी का कोई इम्कान नहीं है। पेट्रोल पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट जैसे रिक्शा, टैक्सी पर कभी किरायानामा जारी नहीं हुआ है। आपको बता रहे हैं पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर असर न पड़ने का खदशा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मिनी वैन्स, मज़दा, ट्रॉलर सब डीजल पर चलते हैं। डीजल की कीमत में इजाफे के बायस किरायों में कमी का कोई इम्कान नहीं है। पेट्रोल पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट जैसे रिक्शा, टैक्सी पर कभी किरायानामा जारी नहीं हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मिनी वैन्स, मज़दा, ट्रॉलर सब डीजल पर चलते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल ₹7.5 फी लीटर सस्ता जबकि डीजल ₹1.5 महंगा कर दिया गया। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर असर न पड़ने का खदशा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मिनी वैगन, मज़दा, ट्रॉलर सब डीजल पर चलते हैं और डीजल की कीमत में ₹1.5 इजाफे के बायस किरायों में कोई कमी का इम्कान नहीं है। लाहौर समेत पंजाब भर में ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट डीजल इंजन पर मुश्तमिल है। पेट्रोल पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट जैसे रिक्शा, टैक्सी, इसका तो कभी किरायानामा ही जारी नहीं हुआ। मोटरसाइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए आज तक बगैर किसी सरकारी ज़ाब्ते के हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कभी टैक्सी या रिक्शा के लिए किरायानामा जारी नहीं किया। अब वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ के तर्जुमान की तरफ से ये बयान दिया गया है कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया तो उसके बाद किरायों में कमी के लिए वर्किंग जारी है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से वजीर ट्रांसपोर्ट के इन दामों को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पेट्रोल सस्ता जरूर हुआ मगर इनकी गाड़ियां डीजल पर चलती हैं। आम आदमी को पेट्रोल सस्ता होने सफरी इखराजात में रिलीफ ना मिलने का खदशा है। दूसरी तरफ रिक्शा ड्राइवर जो टैक्सी मालिकान किसी भी किराएनामे के पाबंद नहीं है, तो लिहाजा वहां पर भी पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद किसी तरह का कोई जो असर है वो नहीं पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब तक डीजल सस्ता नहीं होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया कम नहीं होगा। इस तरह वफाकी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता रात जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया है उसके इकोनॉमी के ऊपर किसी भी तरह के जो गहरे असरात हैं वो पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। आपका शुक्रिया ज़ैन। जबकि दूसरी जानिब एलपीजी की कीमत में ₹17.73 कमी। एलपीजी की नई कीमत ₹215 फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर में कहीं भी ओगरा रेट पर एलपीजी दस्तयाब नहीं। शहर पे एलपीजी 240 से ₹260 फी किलो तक फरोख्त हो रही है। फ़हद अमीन से मज़ीद जान लेते हैं। बताइए फ़हद। जी बिल्कुल, एलपीजी की कीमतों में हुकूमत की जानिब से कमी कर दी गई है। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की कीमत में ₹17.73 फ़ी किलो कमी की गई है और नई कीमत जो है वो ₹215.24 मुकर्रर की गई है। ताहम इस कमी का डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो आम आवाम को नहीं मिल रहा, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी जो है वो ओगरा रेट पर एलपीजी दस्तयाब नहीं है। एलपीजी गरीब का फ्यूल समझा जाता है और ये गरीब की पहुँच से ही बाहर होती जा रही है। मौसम गर्मा में अगर 2-4 साल पहले देखा जाए तो मौसम गर्मा में एलपीजी की कीमत जो है वो 100, 120, 130 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो होती थी, मगर अब एलपीजी इस वक्त शहर में 250 से 260 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका।
अच्छा सर जी, LPG की कीमत कम हो गई है, 17 रुपये कम की है, क्या कहेंगे? मिल रही है इतनी, 215 रुपये कीमत है, क्या रेट मिल रहा है? 240 रुपये मिल रहा है रोज़, 240 रुपये रेट है। पर प्याज महंगी है, रिक्शा ड्राइवर आवाज़ार हुए हैं, मजबूरी में ला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे कंट्रोल करे, सस्ती करे कि आवाम को रिलीज मिले, आवाम परेशान है। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि LPG की कीमत जो है वो इस वक्त 240 रुपये मुख्तलिफ मुकामात से मिल रही है। ओगरा की जानिब से 215 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है, मगर ओगरा रेट पर अमल दरामद होता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब ये जो LPG है इसको गरीब का फ्यूल समझा जाता है। रक्शों में, लोडर गाड़ियों में और ख़ास तौर पर उन इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर कुदरती गैस दस्तयाब नहीं है। तो LPG की कीमत जैसे बढ़ती है तो आवाम जो है वो परेशान होती है। कीमतें कम होने का के समराज जो हैं वो आवाम तक पहुंचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए और मार्केट में वो रेट जो है वो आवाम को मिले जो ओगरा मुकर्रर करती है। बहुत शुक्रिया फ़ाहद। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में चीनी की किल्लत बरकरार है। दुकानदार महंगी चीनी खरीदने से गुरेज़ां, शहरियों के लिए सस्ती चीनी ख्वाब बनकर रह गई है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सप्लाई का जिम्मेदार डीलर्स और ब्रोकर्स को करार दे दिया है। शुगर मिल्स मालिकान के मुताबिक डीलर्स कमर्शियल सारिफिन को महंगी चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल चीनी की सप्लाई के हवाले से बात की जाए तो दावे तो ये किए जा रहे हैं कि सप्लाई जो है वो शुरू कर दी गई और चीनी की जो शहर को जो सप्लाई है वो खासी हद तक बेहतर हुई है। और इस हवाले से जो शुगर मिल एसोसिएशन है उसकी जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो चीनी की सप्लाई का मामला है वो डीलर और ब्रोकर के हाथ में है। शुगर मिलें जो हैं वो 165 रुपये फ़ी किलो जो एक्स मिल रेट है उसके मुताबिक ही सप्लाई कर रही हैं। और इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि जो डीलर और जो ब्रोकर है उसकी जानिब से जो चीनी है वो कमर्शियल सार्फिन को ज़्यादा फ़रोख्त की जा रही है, क्योंकि कमर्शियल सार्फिन जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो रेट देते हैं। हुकूमत की जानिब से चीनी की रिटेल प्राइस यानी कि परचून बाज़ारों में सार्फिन के लिए जो कीमत रखी गई है वो 173 रुपये फ़ी किलो है। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि परचून मार्केटों में अब भी चीनी की किल्लत बरकरार है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है चीनी की और चीनी की कीमतों के हवाले। अस्सलाम वालेकुम सर, 2 दिन हो गए हैं मैं चीनी ढूंढ रहा हूँ, बिल्कुल मिल नहीं रही। परचून दुकानों में तो बिल्कुल है ही नहीं है। बड़ी बड़ी दुकानों पे है, वो कह रहे हैं कि रेट जब तक सही नहीं होगा जब तक हम चीनी नहीं देंगे। 200 रुपये किलो के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि नहीं मिल रही चीनी। अब देखें अब कैसे गुजारा होगा। अब रिक्वेस्ट ही है हमारी जो है बड़े बड़े जो वज़ीर हैं उनसे गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी इस पर ज़रा गौर करें कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये चीनी की वजह से। बिल्कुल, आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो परचून दुकानें हैं या जो करियाना दुकानें हैं यहाँ पर चीनी की दस्तयाबी जो है वो अभी तक आसान नहीं हो सकी है। गली मोहल्लों और मुख्तलिफ इलाकों की जो करियाना दुकानें हैं वहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं, और दुकानदारों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो चीनी की होल सेल कीमत है वो ही काबिल ख़रीद नहीं है। क्योंकि इस वक्त अगर होल सेल कीमतों के हवाले से बात की जाए तो 176, 178 और 180 रुपये फ़ी किलो तक भी जो है बाज़ मुकामात पर जो है वो दावा किया जा रहा है कि मार्केट में होल सेल कीमत है, जबकि रिटेल प्राइस जो हुकूमत की जानिब से दी गई है वो 173 रुपये फ़ी किलो है। चीनी की दस्तयाबी जो है वो अभी भी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी और किल्लत अभी बरकरार है और शहरी जो हैं वो भी परेशान हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 299 अफराद गिरफ्तार, 66 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1776 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। लाहौर डिवीजन में 97 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 7 को गिरफ्तार किया गया है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों बारे आपको बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से चीनी का रेट 173 रुपये मुकर्रर किया गया था, लेकिन मार्केट में चीनी इस वक्त 190 से 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। और अब इस हवाले से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 65,000 रुपये जुर्माना, 20 मुकदमात का इंदराज, 4 इमलाक सरबा मोहर। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रसा कहते हैं कि गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से आइनी हाथों से निपटा जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखें, शहर में मजमूई तौर पर देखा जाए तो गिरां फरोशी धड़ल्ले से जारी है, जिसके हवाले से शहरियों को रोजाना हैजानी कैफियत
का सामना करना पड़ता है। और चीनी हो, फल हो, गोश्त हो, खा वो डबल रोटी, अंडे हो, इस पर जो है रोजाना की बुनियाद पर जो है ग्राम फरोशी रहती है और शहरियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी सिलसिले में जो है मौजूदा सूरत में देखा गया कि जो जिला इंतजामिया की तरफ से क्रैकडाउन किया गया है, जिसमें नर्खनामा की खिलाफवर्जी पर 36 कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। चीनी, फल, सब्जियों समेत चाय और नोश की मुकर्ररा नर्ख पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के हवाले से ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। 65,000 रुपये के जुर्माने, 20 मुकदमात का अंदराज, 4 इमला को सरफा मौखर किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस वाले से देखा जा रहा है कि शहर में चीनी की सूरत हाल को जो है वो मुस्तकम रखने के लिए 173 रुपये फी किलो फरोख्त यकीनी बनाई जा रही है। शहर भर की मार्केट्स में चीनी का वापस स्टॉक मौजूद है। तर्जुमान का ये कहना है, जबकि डिप्टी कमिश्नर रोड सैयद मुसर रजा का कहना है कि ग्राम फरोशी और जखीरा अंदोजी से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आपका शुक्रिया इमरान। आपको बता रहे हैं गिराम फरोशी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया गिराम फरोशी के ख़िलाफ़ एक्टिव नज़र आ रही है। आवाम तक रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में सूरत हाल इसके बरक्स है। ये शायद सिर्फ फोटो। स्मोक तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। डीजी वासा पंजाब और एमडी वासा लाहौर हाईकोर्ट में पेश। अदालत की तरक्याती मंसूबे शुरू करने से कबल मुतबादिल रास्ते देने की हिदायत की गई हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि तरक्याती कामों में ताख़ीर की वजह से जिनके काम मुतासिर हो रहे हैं उनको मुआवजा कौन देगा। ये तो नहीं हो सकता कि सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। डीजी वासा पंजाब और एमडी वासा लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए हैं। अदालत की तरक्याती मंसूबे शुरू करने से कबल मुतबादिल रास्ते देने की हिदायत भी की गई है। मुतबादिल रास्ते देने के हवाले से हिदायत जारी की गई हैं। हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत है। डीजी वासा पंजाब और एमडी वासा लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए। ये तो नहीं हो सकता कि सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। अदालत की तरक्याती मंसूबे शुरू करने से कबल मुतबादिल रास्ते देने की हिदायत सामने आई है। हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक का एक केस है और उस हवाले से समाअत हुई है। डीजी वासा पंजाब और एमडी वासा लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं शहर के बदलते मौसम की। लाहौर में मानसून के मिले जुले रंगों ने समा बांध रखा है। सिस्टम के कमज़ोर पड़ जाने के बावजूद आसमान पर बादलों का तसल्लुत कायम, बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। मौसम की सूरत हाल बारे आपको बता रहे हैं कि मौसम दिन ब दिन बदलता जा रहा है और इस मौसम की मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं सुहेल कैसर से। बताइए सुहेल। देखें, लाहौर में आज भी मौसम इस वक्त तक तो काफ़ी खुशगवार है, बेहतर है कि मतलब अबर आलूद है, हल्की रफ्तार से हवा भी चल रही है और हब्स की कैफियत बस कभी कभार हल्की फुल्की सी महसूस होने लगती है, वरना हालात बेहतर ही हैं। और पंजाब के दीगर जो शहर हैं वहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरह की रहने वाली है कि मतलब अबार आलूद रहेगा, बूंदाबांदी का सिलसिला चलता रहेगा। शायद कहीं पर कोई कुछ तेज़ बारिश भी हो जाए, लेकिन मसला ये है कि जिस सिस्टम ने गुज़श्ता दिनों प्रिवेल किया था पंजाब में, अब वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है। यूँ समझ लें कि अब उसकी टेल बाकी रह गई है। तो जाहिर है कि जब सिस्टम कमज़ोर पड़ गया तो वो बड़ी हल्की फुल्की सी बारिश बरसाने का बाइस ही बन सकता है। हाँ, अलबत्ता आगे 5 अगस्त से एक और सिस्टम के आने की तवक्को ज़ाहिर की गई है और बताया गया है कि वो अच्छी बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा, ना सिर्फ मैदानी इलाकों में बल्कि दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी, जिससे दरियाओं में पानी के बहाव में भी इजाफा होगा, जो कि इस वक्त भी बतदरीज देखा जा रहा है कि इजाफे का अमल चल रहा है। खुसूसन दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। अलबत्ता दरियाए जेहलम में हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं पानी की आमद के हवाले से। और जहाँ तक दरियाए रावी और सतलुज की बात है तो कुछ वो भी भीगना शुरू हो गए हैं बारिश में और अच्छी मिक़दार में पानी जो खुसूसन जसड़ के मुकाम पर रावी में अच्छी मिक़दार में पानी जो है वो आया है। और मुमकिना तौर पर सतलुज में भी कुछ आइंदा 35 से 40 घंटों के दौरान पानी के बहाव में बेहतरी का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, आपका शुक्रिया सोहेल। जमात इस्लामी के हक दो बलोचिस्तान धरने का तीसरा रोज़ है। प्रेस क्लब के इतराफ़ में बदस्तूर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो गई है। शुरका की बड़ी तादाद प्रेस क्लब मौजूद है। मुजाहिरीन का इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कामयाब होने तक धरना दिए रखने का ऐलान। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। बताइए हमजा।
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब चौक में, और अगर आप मेरे अकब में देख सकते हो तो इस वक्त प्रेस क्लब चौक में डाइवर्जन्स लगाई गई हैं, और ये 2 दिन से यही मामला चल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले परसों रात को जो है वो जमात इस्लामी का हक दो बलोचिस्तान मार्च जो कि इस्लामाबाद जाना था, वो मुज़ाकरात के बाद लाहौर प्रेस क्लब पहुँचा था, जबकि इस वक्त शुरका की बड़ी तादाद जो है वो प्रेस क्लब के आगे मौजूद है, जबकि ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए जो शिमला पहाड़ी है उसके गिरदो नवा में डाइवर्जन्स लगाए गए हैं, जिस वजह से ट्रैफिक जो है वो खासी सुस्त रवि का शिकार नज़र आती है, जबकि ऑफिस आवर्स में और पीक आवर्स में यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जैम भी जो है देखने में नज़र आता है। अगर आप मेरे अकब में देख सकते हो तो इस वक्त ट्रैफिक यहाँ पर खासी सुस्त रवि के शिकार है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जो प्रेस क्लब का अकब है, जिसको प्रेस क्लब की जो पीछे का रास्ता है वो वन वे कर दिया गया है, और वहाँ पर जो है आने और जाने वाली गाड़ियाँ दोनों जो है उनको दुश्वारी का सामना है। जबकि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से शिमला पहाड़ी से जो रास्ता माल रोड की जानब जाता है उसको डाइवर्जन लगाकर बंद किया गया है, और बाकायदा जो आने वाले हजरात हैं उनको शिमला पहाड़ी के ऊपर से घूम के जो है वो माल रोड की जानब जाना पड़ता है। जबकि इस वक्त प्रेस क्लब के गिरदोनवा में ट्रैफिक सूरत की अगर मैं आपको बात बताऊं तो चारों इतराफ में जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन जैसे ही ऑफिस आवर्स और पीक आवर्स होंगे यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम जो है वो देखने में सामने आएगा। जबकि अगर मैं आपको अभी की जो सूरत बताऊँ तो गुज़िश्ता रोज़ भी यही मामला रहा, उससे पिछले रोज़ भी जब रात को जो काफ़िला यहाँ पर पहुँचा तब भी जो है वो यही मामला रहा। जबकि अब जो है वो बताया जा रहा है कि आज जो मुज़ाकराती कमेटी है वो 2 बजे मुज़ाकरात करेगी हक दो बलूचिस्तान मार्च के विफाक में, जिसकी जो 6 रुकनी कमेटी जमात इस्लामी की है वो विफाक के लिए रवाना हो चुकी है। जबकि जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और हतमी मराहिल में जो है वो नहीं पहुँचते और कुछ बातें मान नहीं ली जाती, तब तक ये धरना जो है यहीं पर लाहौर प्रेस क्लब में जारी रहेगा, और मुतालबात के बाद जो है वो अगला लाएमल पार्टी क़यादत की तरफ से दिया जाएगा। तब तक यही ट्रैफिक की सूरत हाल देखने में सामने आएगी। जी आपका शुक्रिया। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के हल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक मंसूबा शुरू करने का फैसला। शादरा से रायमंड के दरमियान रेलवे ट्रैक से मुंसलिक एरिया को ग्रीन बेल्ट्स में तब्दील किया जाएगा। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर शहरियों के लिए तफरीही मुकामात बनाए जाएंगे। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी जैसे संगीन मसाइल के हल के लिए ग्रीन कॉरिडोर का मंसूबा बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। शादरा से रायवंड के दरमियान रेलवे ट्रैक से मुंसलिक एरिया को ग्रीन बेल्ट्स में तब्दील किया जाएगा। ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और पाकिस्तान रेलवेज के इश्तराक से ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पर शहरियों के लिए तफरीही मुकामात भी बनाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक रेलवे की पुरानी बोगियों में लाइब्रेरियां और कैफेज बनाए जाएंगे। इस मंसूबे पर तकरीबन 2 अरब 35 करोड़ 52 लाख 80 हज़ार रुपए लागत आएगी। मंसूबे की लंबाई 40 किलोमीटर और रकबा 700 कनाल है। ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे को कुल 4 पैकेजेस में तकसीम किया गया है। महकमा हाउसिंग पंजाब ने मंसूबे का PC1 महकमा PND को अरसाल कर दिया है। PC1 के मुताबिक पहले पैकेज में शादरा से रेलवे स्टेशन, फिर दूसरे पैकेज में वॉल्टन तक काम मुकम्मल किया जाएगा। तीसरे पैकेज में वॉल्टन स्टेशन से कोट लखपत, जबकि चौथे पैकेज में कोट लखपत स्टेशन से रायमंड तक ग्रीन कॉरिडोर को मुकम्मल किया जाएगा। महकमा हाउसिंग पंजाब इस मंसूबे की निगरानी करेगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ग्रीन एरियाज को बढ़ाया जा रहा है ताकि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सके। आपका शुक्रिया। बागबानपुरा में डकैती मज़ामत पर एक शख्स जख्मी, डाकू ने मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। मज़ामत पर ऑनलाइन मोटरसाइकिल ड्राइवर को गोली मार दी गई। पुलिस ने डकैती मज़ामत की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुजाहिद लतीफ़ से मज़ीद जानते हैं। मुजाहिद, बताइए इस वाक़े के बारे में। बिल्कुल उसामा, ये बागवानपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद है जहां पर डकैती मज़ामत पर एक शख्स को गोली मारकर डाकुओं ने जख्मी कर दिया है। लाहौर में डाकुओं पर CCD का खौफ खत्म होने लगा है और इसी तरह से थाना बागवानपुरा की हदूद में ऑनलाइन मोटरसाइकिल ड्राइवर को डाकुओं ने छाती पर गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया है। पुलिस ने डकैती मज़ामत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी तक ना तो मुलजिम की शनाख्त हो सकी है, ना ही उसे गिरफ्तार किया गया है। मुसल्लह शख्स मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनना चाहता था, ये FIR का मतन है। और जो जख्मी आलम है उसकी मुद्दत में पुलिस ने डकैती मज़ामत पर जख्मी होने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि लाहौर में क्राइम काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अब ये एक डकैती मज़ामत की बड़ी वारदात सामने आई है जिसमें एक मेहनत कश
ऑन लाइन मोटरसाइकिल ड्राइवर को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। उसामा। ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बराह रास्त हज ऑर्गेनाइजर उनके लिए बेहतर से बेहतर खिदमात पेश करेंगे और ये हज पॉलिसी इंशाअल्लाह पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो कवानीन हैं हुज्जाज इकराम, हज टूर ऑपरेटर, इस पर अमल दरामद करेंगे। मैं इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब का, सेक्रेटरी मजहबी अमूर और हज कमेटी के सरबराह जो वज़ीर आज़म ने बनाई थी जनाब राना सनाउल्लाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिरी बात, आपने देखा कि इस हफ्ते में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर फ़लस्तीन पर सऊदी अरब और फ़्रांस की सदारत में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके लिए सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने बहुत मेहनत की, जद्दोजहद की और अब अल्हम्दुलिल्लाह कई यूरोपीय ममालिक, फ़्रांस, बरतानिया या इंडिया दे रहे हैं कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की एक मजबूत खुद मुख्तार रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। और दुनिया सारी जो इसराइल मजालिम कर रहा है, इस पर फ़लस्तीनियों की हम आवाज़ हुई है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और सिपह सलार जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर फ़लस्तीन के हवाले से और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। हमारी वज़ारत ख़ारजा को बिलखुसूस इन चंद माह में जो कामयाबियाँ मिली हैं वो बिलाशुबा पूरी कौम के सामने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होगा, जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ होगा। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए स्किल्स डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का इजलास, नए स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के क़याम का जायज़ा लिया गया। इजलास चेयरमैन कमेटी राना अब्दुल मन्नान साजिद की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 5 बड़े इदारों के इंतज़ाम से तश्कील दिया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि एक बड़ा फ़ैसला किया गया है। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का इजलास हुआ है और नए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के क़याम का जायज़ा लिया गया है। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बाय स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का इजलास, नए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के क़याम का जायज़ा लिया गया है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में स्किल्स डेवलपमेंट कायमा कमेटी का इजलास हुआ है। अगर मैं आपको इसका अहवाल बताता चलूँ तो आज पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो राना अब्दुल मन्नान की सरबराही में हुआ है, जबकि इसमें जो आज अहवाल डिस्कस किया गया है वो नए स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के क़याम का जायज़ा लिया गया है। जबकि स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 5 बड़े इदारों के इंतज़ाम से तश्कील दिया जा रहा है, ये ब्रीफिंग दी गई है। जबकि ब्रीफिंग में मज़ीद बताया गया कि इदारों में PTI OTA, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड और पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी शामिल हैं। जबकि कमेटी ने हदायत की है कि बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वाले वर्कर्स की रवानगी से पहले मेयारी तरबियत फराहम की जाए। 54% पाकिस्तानी ओवरसीज़ वर्कर्स का ताल्लुक पंजाब से है। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया है। जबकि मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन पर भी बात की गई है। जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि बैनुल-अक़वामी रवाबित, गवर्नेंस ट्रेनिंग की फराहमी, नसाब की अपडेट्स और स्किल्स ट्रेनिंग के बारे में अवामी तासुर को बेहतर बनाने जैसे पहलुओं पर काम किया जा रहा है। जबकि कमेटी ने हदायत की किसी भी वर्कर को बैरून मुल्क रवाना करने से पहले किसी तस्लीम शुदा इदारे से मुनासिब तरबियत दिलवाना लाजमी करार दिया जाए। जबकि इजलास में फैसल बिलाल भुट्टर, MP अब्दुल मन्नान, एडिशनल सेक्रेटरी कमेटी, सेक्रेटरी स्किल्स डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप और दीगर अफसरान ने शिरकत की। जबकि जो कमेटी के चेयरमैन हैं राना अब्दुल मन्नान साजिद, उन्होंने तमाम हदायत पास की हैं। आपका शुक्रिया हमजा। गैर रस्मी स्कूलों से मुतल्लिक पेशरफ 2 साल में 1,82,000 बच्चे फॉर्मल तालीमी निज़ाम में शामिल किए गए हैं। पंजाब में इस वक्त 20,000 से ज़ायद गैर रस्मी तालीमी मराकज़ फ़ाल हैं। मज़कूरा मराकज़ में 6 लाख से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। बताइए आतिफ। बिल्कुल, जो गैर रस्मी स्कूल है इनका मकसद तो यही है कि जो बच्चे यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल हैं
ان کو تعلیم دی جائے اور ان کو فارمل اسکولوں میں بھجوایا جائے. اور اب اس حوالے سے ہم فیصلہ سنیے. گزشتہ 2 سالوں میں غیر رسمی اسکولوں میں پڑھنے والے 1,82,000 جو طلبہ ہیں ان کو تعلیم دے کر جو فارمل اسکولوں میں بھجوایا گیا ہے. اس حوالے سے جو محکمہ لٹریسی کی جانب سے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں کہ اس وقت محکمہ لٹریسی کے 20,000 کے قریب جو سینٹر موجود ہیں جہاں پر 6 لاکھ طلبہ زیر تعلیم ہے. غیر رسمی تعلیمی مراکز میں بنیادی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے. تعلیم مکمل کرنے پر بچوں کو روایتی اسکولوں میں داخل کیا جا رہا ہے. غیر رسمی اسکول سے فائدہ اٹھانے والے زیادہ تر بچے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ذرائع کے مطابق اگر بجٹ میں اضافہ کیا جائے تو مزید آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں ان کو اسکولوں میں لایا جا سکتا ہے. اور ایک پلان غیر رسمی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے محکمہ اسکول اور وزیر اعلیٰ کو بھجوایا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ 4 سالوں میں 32 لاکھ جو اسکولوں سے باہر بچے ہیں ان کو اسکولوں میں لایا جا سکتا ہے. اس کے لیے سالانہ 15 ارب روپے کا بجٹ درکار ہے. جی بہت شکریہ عاطف. گلاسگو میں مہجون کے دوران سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا. صارفین نے مہجون کے دوران 3 ارب روپے بلوں کی مد میں ریلیف لے لیا. گلاسگو میں سولر سسٹم سے مہجون میں 17 کروڑ یونٹس کی پیداوار ہوئی. صارفین نے قومی گرڈ سسٹم کو 12 کروڑ یونٹس ایکسپورٹ کیے. مزید جان لیتے ہیں فہد امین سے. فہد بتائیے گا. جی بالکل. نارتھ الیکٹرک سپلائی کمپنی نے ماہ جون کے دوران سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور صارفین نے ماہ جون کے دوران 3 ارب روپے بجلی کی بلوں کی مد میں جو ہے وہ ریلیف کیا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گلاسگو میں سولر سسٹم سے ماہ جون میں 17 کروڑ یونٹ کی پیداوار کی گئی ہے. نے قومی گرڈ سسٹم کو 12 کروڑ یونٹس ایکسپورٹ کیا ہے. مجموعی طور پر 1,05,000 صارفین نے سولر سسٹم پر کنیکشن لے رکھا ہے اور بجلی کی پیداوار کرنے والوں میں گھریلو کمرشل صنعت کے ٹیوب ویل کے کنیکشن شامل ہیں. جی آپ کا شکریہ. پی پی ایس سی نے مختلف محکموں کی اسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کر دیا. پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی میں پروسیکیوٹر کی 154 اسامیوں کے لیے 610 امیدوار کامیاب. محکمہ مدنیات میں جی آئی ایس ڈیولپمنٹ آفیسر کی 2 اسامیوں پر 10 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب. تفصیلات عاطف پرویز سے جانتے ہیں. بتائیے عاطف. عاطف سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں. پی پی ایس سی نے مختلف محکموں کے اسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے. پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی میں پروسیکیوٹر کی 154 اسامیوں کے لیے 610 امیدوار کامیاب. سیکٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، پیرا، میٹروپولیٹن کارپوریشن اور ٹریفک پولیس کا آپریشن. بغیر لائسنس اور منظوری رکشوں کی باڈی یا رکشہ بنانے پر 5 غیر قانونی رکشہ باڈی ورکشاپ سیل. درجنوں غیر قانونی باڈیز ضبط کر لی گئیں. ورکشاپ مالک سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج. مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے. زین بتائیے گا. سیکریٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، پیرا، میٹروپولیٹن کارپوریشن اور ٹریفک پولیس کی طرف سے یہ گرینڈ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے کہ بغیر لائسنس اور بغیر منظوری رکشوں کی باڈی یا رکشہ بنانے پر 5 غیر قانونی رکشہ باڈی ورکشاپ کو سیل کر دیا گیا ہے. جبکہ اس آپریشن کے دوران درجنوں غیر قانونی باڈیز کو ضبط بھی کر لیا گیا ہے. اس کارروائی میں ورکشاپ مالک سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. قانون کے مطابق بغیر لائسنس اور بغیر منظوری رکشہ بنانا غیر قانونی ہے، جبکہ موٹر سائیکل کو غیر قانونی طور پر سواری رکشہ یا لوڈر رکشہ بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اسی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ کے قوانین کے مطابق کوالٹی پر پورا اترنے والی لائسنس یافتہ کمپنیاں ہی رکشہ بنانے کی مجاز ہیں، لیکن مکینیکل ٹیکنیک کے بغیر بننے والے رکشوں کے حادثات میں بھی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. تو اسی تناظر میں یہ آپریشن کیا گیا. 5 غیر قانونی رکشہ باڈی ورکشاپ کو سیل کر دیا گیا، غیر قانونی باڈیز کو قبضے میں لیا گیا اور 8 افراد کے خلاف متعلقہ تھانوں میں مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ زین. پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کی 3 ملکی سیریز کا شیڈیول جاری. T20 ٹرائی سیریز 29 اگست سے 7 سپٹمبر تک شارجہ میں ہوں گی. افتتاحی میچ 29 اگست کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا. محمد اسامہ سے مزید جانتے ہیں. اسامہ بتائیے اس بارے. بالکل. پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کی 3 ملکی سیریز کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. T20 میچز کی سیریز 29 اگست سے 7 سپٹمبر تک شارجہ میں ہوگی اور ابتدائی میچ 29 اگست کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوگا. ہر ٹیم حریف ٹیموں سے 2 مرتبہ میچز کھیلے گی. فائنل 7 سپٹمبر کو ہوگا اور 2 ٹاپ ٹیموں کے درمیان جوڑ پڑے گا.
तीन मुल्की सीरीज का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान 29 अगस्त को टकराएंगे। पाकिस्तान और यूएई 30 अगस्त को, 1 सितंबर को यूएई और अफगानिस्तान, जबकि 2 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर आमने सामने होंगे। 4 सितंबर को पाकिस्तान और यूएई की टीमों के दरमियान जोड़ पड़ेगा, जबकि अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान 5 सितंबर को आखिरी लीग मैच ठीक है होगा। उसामा, बहुत शुक्रिया। स्कूलों में कितने फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल हैं? महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ से डाटा तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि पानी के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से पंजाब हुकूमत बहुत एक्टिव नज़र आ रही है। फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं और अब स्कूलों के हवाले से ये फैसला